Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम 19 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट टू महाराष्ट्र। राइट, इन्होंने यहाँ पे अभी हमने देखा था एक सबसे बड़ा ब्रिज अभी इनॉग्रेट किया गया है, नवी मुंबई एंड आपका मुंबई के बीच में, राइट, अटल सेतु ब्रिज। राइट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यूरिंग हिज विजिट पीएम मोदी इनॉग्रेटेड अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहा सेवा अटल सेतु ब्रिज इन नवी मुंबई महाराष्ट्र। काफ़ी ज़्यादा इसकी कॉस्ट रहेगी, एक साल के लिए 12,500 रुपये आपको देने पड़ेंगे फॉर ट्रैवलिंग बोथ वेज फॉर अ कार। राइट, काफ़ी ज़्यादा इसके हाई टैक्सेस लगे, बट काफ़ी बहुत ब्यूटीफुली बिल्ट है, बहुत लंबा है, एंड ये आपके 2 घंटे के टाइम को रिड्यूस कर देगा टू जस्ट 20 मिनट्स। तो आप 1 घंटा 40 मिनट डेली बचाएंगे इन कम्यूटिंग, करेक्ट। तो ये फिर प्राइस कहीं ना कहीं देखें तो जस्टिफाइड भी है। नेक्स्ट पे आते हैं, ही ऑल्सो इनॉग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ 12,700 करोड़ रुपीज। थर्ड आ जाता है, पीएम मोदी इनॉग्रेटेड भारत रत्नम विच इज अ मेगा कॉमन फैसिलिटी सेंटर फॉर द जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर, जो कि सेंटा क्रूज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने मुंबई महाराष्ट्र में इसको लॉन्च किया गया। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। गवर्नर कौन रहेंगे? रमेश बायस। अगर यहाँ पे देखें नेशनल पार्क तो नवेगांव नेशनल पार्क है, यहाँ पर आपका चंदोली नेशनल पार्क रहेगा। राइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेम द एप्लीकेशन जो कि लॉन्च की गई फॉर MPLADS स्कीम। ये MPLADS, ये MPLAD स्कीम बेसिकली है क्या? सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट, MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट, ये आपकी स्कीम रहेगी MPLAD स्कीम। राइट, इसको लॉन्च किया गया था 23 दिसंबर 1993 को। बेसिक इसका एम क्या है कि जब MPs को जो डाटा चाहिए होता है अपने एरिया में वर्क करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, तो वो टाइम पे इनको मिल सकें, और इसी के लिए यहाँ पर एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है जिसका नाम रहेगा ई-साक्षी एप्लीकेशन। राइट, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है, न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया। राव इंद्रजीत सिंह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। राइट, एंड पूरी साइकिल को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए कि कैसे प्रोसेस होती है, कैसे डेवलपमेंट का डाटा आता है, क्या क्या चीज़ों को परमिशन लेनी पड़ती है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे ई-साक्षी एप्लीकेशन के अंदर लाई गई। राइट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं राव इंद्रजीत सिंह, इनके द्वारा लॉन्च की गई MPLADS ई-साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन न्यू दिल्ली में, और ये MPLADS किया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम 2023 के लिए। राइट, अगर इस एप्लीकेशन की बात करें, ये प्रोवाइड करेगी एन इंटरफेस टू कैप्चर द एंटायर MPLAD स्कीम साइकिल, देयर बाय मेकिंग
this MP LED fund cycle more efficient. Through this application, MPs can track and oversee the projects in the real time which is being implemented under MP LED scheme. The application will streamline the communication between MPs and relevant authorities. मूविंग ऑन, एक्सरसाइज अयोध्या ये कंडक्ट की गई बिटवीन इंडियन नेवी एंड विच कंट्रीज नेवी. तो अयोध्या एक्सरसाइज थाईलैंड नेवी या फिर हम बोले रॉयल थाई नेवी इनके द्वारा एंड इंडियन नेवी के बीच में ये कंडक्ट कराई गई. राइट, पहला एडिशन था इस अयोध्या एक्सरसाइज का जो कि 20 से लेके 23 दिसंबर तक हुई. और इसी के साथ साथ याद रखेंगे ये कॉर्पोरेट एक्सरसाइज के अंडर भी हुई थी जिसका 36वां एडिशन हमें देखने को मिला. इंडो थाई कॉर्पोरेट एक्सरसाइज थी ये 36वां एडिशन जिस एक्सरसाइज का था. ठीक है, अयोध्या क्या बात करूं तो इसका मतलब होता है अनडिफिटेबल, राइट, इनविंसिबल या फिर अनडिफिटेबल. नेक्स्ट, अयोध्या याद रखेंगे थाईलैंड में एक सिटी है एंड ये जो सिटी है ना दो सिटीज को सिंबलाइज करती है. अयोध्या यूपी में जो कि इंडिया में है एंड अयोध्या जो कि थाईलैंड में. चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं फिर. और एक चीज़ और यहाँ पर अगर मैं पूछूं इंडियन नेवल शिप, कौन से इंडियन नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया इस एक्सरसाइज में, तो INS कुलिश इसने पार्टिसिपेट किया इन दिस अयोध्या एक्सरसाइज. नेक्स्ट आ जाते हैं NHAI, इन्होंने लॉन्च किया एक इनिशिएटिव टू एनहेंस द नेशनल हाईवे एक्सपीरियंस. तो याद रखेंगे अभी वन व्हीकल वन फास्टैग एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है. इसके अंदर क्या होगा कि एक गाड़ी के लिए आपका एक ही फास्टैग होगा. पहले क्या होता था, एक गाड़ी के लिए मल्टीपल फास्टैग रख लेते थे या फिर एक फास्टैग मल्टीपल कार्स के लिए रख लेते थे कि उसी फास्टैग को हम अपनी अलग अलग गाड़ी के लिए भी यूज़ कर सकेंगे. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. अब क्या है कि सभी फास्टैग्स यहाँ पर डीएक्टिवेट हो जाएंगे 31 जनवरी 2024 तक. एंड जो कि KYC भी नहीं हो रखी थी उनकी, तो अब क्या होगा, जो फास्टैग यूजर्स होंगे उनको लेटेस्ट फास्टैग लेने पड़ेंगे, उनको KYC करानी पड़ेगी, नो योर कस्टमर प्रोसेस करानी पड़ेगी एज पर द RPI गाइडलाइन. और हर गाड़ी के लिए अपना खुद का एक फास्टैग होगा. कोई मिसमैच नहीं हो सकता कि आप एक गाड़ी के लिए दो फास्टैग या फिर एक फास्टैग आप अपनी 2-3 गाड़ी के लिए यूज कर रहे हैं, वो अब नहीं होगा. ठीक, फास्टैग की बात करें तो ये RFID टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है. RFID क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, राइट. एंड अब जो है और फर्स्ट टाइम लॉन्च कब किया गया था फास्टैग, 2014 में इसको लॉन्च किया गया था फास्टैग को. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. इंडिया का फर्स्ट नेशनल हाईवे स्टील स्लैग रॉड हैज़ बिन अनवेल्ड ऑन विच हाईवे. तो पहला स्टील स्लैग रॉड हाईवे पर NH66 हाईवे पर लॉन्च किया गया है. ये आपका मुंबई टू गोवा को कनेक्ट करता जो पैच है उस पर लॉन्च किया गया है. 1 किलोमीटर लंबा ये आपका पैच रहेगा, राइट. मार्क करके चलेंगे इसको, जहां पर ये आपका स्टील स्लैग रॉड लॉन्च किया गया है. और ये 4 लेन हाईवे है. अबाउट 1 किलोमीटर से पाथ पर इसको NH66 पर लॉन्च किया गया है, राइट. मार्क करके चलेंगे. मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं फिर. इंडिया ने साइन किया एक एग्रीमेंट फॉर लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग प्रोजेक्ट इन विच कंट्री. लिथियम हम जानते हैं लिथियम आयन बैटरीज बनाने के काम आता है. ये आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर जो भी इलेक्ट्रिक से चार्ज होने वाली जो भी हम टेक्नोलॉजी देखते हैं उसमें यूज़ होगा आने वाले टाइम में काफ़ी. और इंडिया में भी जम्मू एंड कश्मीर में इसके रिजर्व अभी फाउंड हुए थे. तो इंडिया ने एक अग्रीमेंट साइन किया लिथियम एक्सप्लोरेशन का एंड माइनिंग प्रोजेक्ट इन विच कंट्री. और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पहला सच प्रोजेक्ट रहेगा. किस कंट्री के साथ ये साइन किया, और ये 200 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट रहेगा. तो ये रहेगा अर्जेंटीना के साथ, राइट. अर्जेंटीना में यहाँ पर लिथियम माइनिंग के लिए, लिथियम एक्सप्लोरेशन के लिए इंडिया ने एक प्रोजेक्ट अग्रीमेंट साइन किया. 200 करोड़ रुपए का ये अग्रीमेंट रहेगा. और काबिल, राइट, ये एक कंपनी है जो कि एक्सप्लोरेशन यहाँ पे स्टार्ट करेगी इन अर्जेंटीना. काबिल की बात करें तो चेयरमैन कौन रहेंगे यहाँ पे, श्रीधर पात्रा. और हेडक्वार्टर कहाँ पर है काबिल का, न्यू दिल्ली में. मूविंग ऑन, नेक्स्ट आते हैं फिर बैंकिंग एंड फाइनेंस पर. तो भी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड इन ULIP सेगमेंट. मिड कैप होता है, स्मॉल कैप होता है, लार्ज कैप होता है, राइट. ये कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर होता है, राइट. एंड मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा भी मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड लॉन्च किया गया अंडर यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान सेगमेंट. ये जो NFO है ये एम करता है टू इन्वेस्ट इन द बास्केट ऑफ स्टॉक्स ड्रॉन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ NSE मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड. ये जो NFO है ये इन्वेस्ट करेगा इन द स्टॉक्स जिन्होंने 175% का CAGR दिया है अंडर AUM, अंडर एसेट अंडर मैनेजमेंट ओवर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स, करेक्ट.
चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? प्रशांत त्रिपाठी। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? गुरुग्राम हरियाणा में। और इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? सन 2000 में। मूविंग ऑन नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी साइन किया एक एमओयू विद एनपीसीआई इंटरनेशनल टू एक्सपेंड यूपीआई ग्लोबली? हम जानते हैं मल्टीपल कंट्रीज में, जैसे फ्रांस में, यूएसए में, यूके में, सिंगापुर में, देन सऊदी अरेबिया में, देन ओमान में, कतर में, आपका ये सारी जगह पर हम देख रहे हैं यूपीआई का यूज़ बढ़ता जा रहा है। एंड इंडियन ट्रैवलर्स जहाँ पर होंगे, जहाँ पे इंडियन डायस्पोरा होगा, आप देखेंगे वहाँ पर यहाँ पर यूपीआई का यूज़ बढ़ता जा रहा है। करेक्ट। तो अभी रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक एनपीसीआई इंटरनेशनल के साथ एमओयू साइन किया ताकि यूपीआई को ग्लोबली लेके जाया जा सके? वो है गूगल पे ने एनपीसीआई इंटरनेशनल के साथ यहाँ पर एक एमओयू साइन किया है ताकि यूपीआई के यूज़ को बढ़ाया जा सके एंड दूसरी कंट्रीज भी इसको यूज़ कर सकें ताकि वो भी अपने ट्रांजैक्शन को और ज़्यादा बेटर कर सकें। राइट। तो मार्क करके चलेंगे, गूगल ने एनपीसीआई इंटरनेशनल के साथ यहाँ पर पार्टनर किया, गूगल पे ने। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इंडसइंड बैंक एंड इजी डाइनर, इन्होंने पार्टनर किया टू लॉन्च इजी डाइनर इंडसइंड बैंक प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड को। तो याद रखेंगे, इंडसइंड बैंक इन्होंने कोलैबोरेट किया इजी डाइनर के साथ ताकि इजी डाइनर इंडसइंड बैंक प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जा सके, जो कि नो जॉइनिंग फीस, कोई जॉइनिंग फीस नहीं रहेगी इसकी। एंड ये जो हमारा डाइनिंग एक्सपीरियंस होता है इसको और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए ये लॉन्च किया गया था। ठीक है। फिर गुरुग्राम हरियाणा बेस्ड इजी डाइनर, ये इंडिया का लीडिंग फूड डिस्कवरी, टेबल रिजर्वेशन एंड रेस्टोरेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म रहेगा। इंडसइंड बैंक की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? सुमंत खतपालिया। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? मुंबई महाराष्ट्र में। इसका 1994 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। टैगलाइन की बात करें, वी मेक यू फील रिचर। नेक्स्ट आ जाते हैं इकोनॉमी एंड बिजनेस पर। अभी जिफ्ट सिटी में एक एमओयू साइन किया गया, एक जिफ्ट सिटी ने, आईएफएससी जिफ्ट सिटी ने एक एमओयू साइन किया आईजीएक्स, जो कि है इंडियन गैस एक्सचेंज, इन्होंने एंड गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के साथ ये एमओयू साइन किया। एंड जो ये एमओयू साइन किया गया बेसिकली ग्लोबल हाइड्रोजन ट्रेडिंग मैकेनिज्म सेटअप करने की बात की गई। हम जानते हैं ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है एंड ग्रीन हाइड्रोजन को आने वाले टाइम में एज अ फ्यूल काफ़ी चीज़ों में यूज़ किया जाएगा। तो इसी के लिए एक ग्लोबल हाइड्रोजन ट्रेडिंग मैकेनिज्म सेटअप करने के लिए आईएफएससी गांधीनगर, आईएफएससी जिफ्ट सिटी, इन्होंने एक एमओयू साइन किया इंडियन गैस एक्सचेंज एंड गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के साथ। ये एमओयू साइन हुआ ड्यूरिंग द 10th वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में, जो कि 10 से लेके 12 जनवरी में हुई थी। करेक्ट। कहां पर? गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है। ताकि ट्रांसपेरेंसी बनाई जा सके और जो इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस है वो बढ़ाया जा सके एंड जो ग्रीन हाइड्रोजन की जो मार्केट है उसको ग्रो करा जा सके। राइट। उसको क्योंकि आने वाले टाइम में एज अ फ्यूल देखेंगे, क्लीन फ्यूल है, कोई कार्बन रिलीज नहीं होता इसके बर्न होने पे, तो इसको और ग्रो करने की यहाँ पे बात की गई, एक प्रॉपर मैकेनिज्म सेटअप करने की बात की गई। आईजीएक्स की बात करें तो इंडियन गैस एक्सचेंज, इनके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? राजेश कुमार मेहदीरता। राइट। नोएडा यूपी में इसका हेडक्वार्टर रहेगा और सन 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज बीन नेम्ड एज द बेस्ट फीफा मैन प्लेयर अवार्ड 2023, तो वो रहेंगे लायनल मेसी। अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं, मेंस कैटेगरी में इन्होंने जीता। अगर मैं बात करूं वीमेंस कैटेगरी में तो वो है आइताना बॉनमाती, ये स्पेन से बिलोंग करती हैं और इनको नेम किया गया एज द बेस्ट फीफा वीमेन प्लेयर 2023 के लिए। इसके अलावा याद रखेंगे लायनल मेसी हो गई, आइताना बॉनमाती, मार्ता, ये ब्राज़ील से बिलोंग करती है और इनको फीफा स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर हर आउटस्टैंडिंग करियर अचीवमेंट। एंड गुलहर्म मार्दुगा, ये ब्राज़ील से हैं, इनको सम्मानित किया गया विद फीफा पुस्कास अवार्ड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग ओवरहेड किक के लिए। राइट। इसको मार्क करेंगे। फीफा की अगर मैं बात करूं तो फीफा के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा इसका? ज़ुरिच, स्विट्जरलैंड में। एंड इसको 1904 में इस्टेब्लिश करा गया था। मूविंग ऑन, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन पर आते हैं। तो आरबीआई ने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ प्रवीण अचूतन कुटी, इनको एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया गया है डीसीबी बैंक का। ये रिप्लेस करेंगे मुराली एन नटराजन जी को। राइट। एंड 19 अप्रैल 2024 को ये इनका अपना टर्म स्टार्ट हो जाएगा एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ डीसीबी बैंक। 3 साल के लिए इन पोजीशन में अपॉइंट किए गए हैं।
प्रवीण अचूतन कुट्टी की बात करें तो इनको 32 साल का एक्सपीरियंस रहेगा ऑफ रिटेल एंड स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज बैंकिंग एसएमई बैंकिंग में, एंड इन्होंने ज्वाइन किया था डीसीबी बैंक को इन 2007 एज एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ कंज्यूमर बैंकिंग। ठीक है, डीसीबी बैंक की बात करें तो मुराली एम नटराजन अभी इनके एमडी एंड सीईओ हैं। फिर 29 अप्रैल 2024 के बाद कौन हो जाएंगे? प्रवीण अचूतन कुट्टी, एंड हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा इसका? मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आते हैं फ्रेडरिक एक्स, ये अभी नए किंग बन गए हैं डेनमार्क के, राइट। इन्होंने और किसके एब्डिक्शन के बाद? एब्डिक्शन ऑफ हिज मदर क्वीन मार्गरेट द सेकेंड, राइट। तो सिंपल याद रखेंगे डेनमार्क के नए किंग कौन बन गए हैं? फ्रेडरिक एक्स, राइट। कैपिटल क्या है डेनमार्क की? कोपेनहेगन। करेंसी क्या है? डेनिश क्रॉन। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मैटी फ्रेडरिक्सन। ठीक, चलिए, और इनके प्राइम मिनिस्टर ने ही इनको यहाँ पे नया किंग की पोजीशन पे प्रोक्लेम किया, प्रोक्लेम्ड एज द न्यू किंग ऑफ डेनमार्क बाय प्राइम मिनिस्टर मैट फ्रेडरिक्सन। कौन? फ्रेडरिक एक्स। ये नए प्राइम मिनिस्टर, ये नए किंग बन गए। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक टग की, राइट। बोलार्ड टग 25T बोलार्ड टग, बोलार्ड पुल टग, इसका नाम रहेगा भीष्म, राइट। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड कोलकाता में इसको अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया। ये जो टग है इसको बिल्ड किया गया है विद इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग रूल्स के हिसाब से, एंड विद द लॉन्च द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डिलीवरी ऑफ 6 25T बोलार्ड पुल टग वॉज कंक्लूडेड विद टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड। तो याद रखेंगे 25T बोलार्ड पुल टग का क्या नाम रहेगा? भीष्म। और इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया है? टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड, जो कि वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर। तो अभी रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी के द्वारा एक नई बुक लॉन्च की गई है जिसका नाम रहेगा फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर। ये बुक डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के द्वारा लिखी गई है। आई रिपीट, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने अभी रिसेंटली एक नई बुक रिलीज की जिसका टाइटल है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, भारत मार्च टुवर्ड फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी। इस बुक को ऑथर किया गया डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के द्वारा, राइट। ये हिंदी वर्जन इस बुक का जो टाइटल था वो क्या था? उर्वरक आत्मनिर्भरता की राह। आई रिपीट, उर्वरक आत्मनिर्भरता की राह। इस बुक को पब्लिश किया गया रूपा पब्लिकेशंस इंडिया के द्वारा, एंड ये जो बुक है ये पोर्ट्रे कर रही है अबाउट द जर्नी ऑफ इंडिया मेकिंग इट्स सेल्फ रिलायंट इन द फर्टिलाइजर सेक्टर, खुद को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए इन द फर्टिलाइजर सेक्टर अंडर द लीडरशिप ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी। ये बुक उसके बारे में बताती है। लॉन्च की गई जगदीप धनखड़ जी के द्वारा और इसको लिखा गया था डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन की तरफ। पीएम मोदी ने विजिट किया महाराष्ट्र और वहाँ पे काफ़ी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। देन यूनियन मिनिस्टर राव इंद्रजीत सिंह इन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की फॉर MPLAD स्कीम जिसका नाम है ई साक्षी एप्लीकेशन। देन इंडियन नेवी एंड थाईलैंड नेवी के बीच में पहली बायलैटरल एक्सरसाइज हुई, एक्सरसाइज अयोध्या। देन NHAI ने लॉन्च किया वन व्हीकल वन फास्टैग इनिशिएटिव टू एनहेंस द नेशनल हाईवे एक्सपीरियंस। देन इंडिया का पहला नेशनल हाईवे स्टील स्लैग रॉड सेक्शन NH66 पे अनवेल किया गया। देन नेक्स्ट, इंडिया ने साइन किया एक एग्रीमेंट फॉर लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग प्रोजेक्ट अर्जेंटीना में। मैक्स लाइफ ने लॉन्च किया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड इन ULIP सेगमेंट। गूगल पे इन्होंने साइन किया एक MOU विद NPCI इंटरनेशनल टू एक्सपेंड UPI ग्लोबली। इंडसइंड बैंक एंड इजी डाइनर इन्होंने पार्टनर किया टू लॉन्च इजी डाइनर इंडसइंड बैंक प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड को। देन IFSC जिफ्ट सिटी इन्होंने साइन किया एक MOU IGX GSPC के साथ फॉर ग्लोबल हाइड्रोजन ट्रेडिंग मैकेनिज्म। नेक्स्ट, बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स थे। यहाँ पे लायनल मेसी को बेस्ट मैन प्लेयर अवार्ड से एंड आइताना बॉनमाती जो कि स्पेन से हैं इनको बेस्ट वीमेन प्लेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। देन RBI ने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ प्रवीण अचूतन कुट्टी एज MD एंड CEO ऑफ DCB बैंक। फ्रेडरिक एक्स इनको नया किंग बनाया गया डेनमार्क का। CCI ने अप्रूव किया मालगेशन ऑफ श्रीराम LL होल्डिंग विद श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस। देन 25T बोलार्ड पुल टग इसका नाम रखा गया भीष्म और इसको लॉन्च किया गया टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड में इन वेस्ट बंगाल। देन वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी के द्वारा अनवील की गई न्यू बुक फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर जो कि डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के द्वारा ऑथर की गई। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि आपके लिए और बेटर कंटेंट डेली बेसिस पे मैं ला सकूं। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स आपके रिवीजन पार्ट पर। यह सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी लर्निंग के लिए। पहले बात कर रहे हैं विच स्टेट इज या फिर आर द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स इन स्टार्टअप रैंकिंग 2022।
मतलब अगर स्टार्टअप्स के हिसाब से देखें कहाँ पे किस स्टेट में ज़्यादा अच्छे स्टार्टअप्स ग्रो कर रहे हैं, जहाँ से ज़्यादा स्टार्टअप्स आ रहे हैं, राइट, तो वो कौन सी स्टेट रहेंगी? गुजरात, केरला एंड कर्नाटका। ये तीनों वो स्टेट हैं जिन्होंने टॉप किया है और एमर्ज करके आई एज द स्टेट विद द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स इन स्टार्टअप रैंकिंग 2022 की। ठीक है, याद रखेंगे। फिर ये जो इवेंट इसी के दौरान 4th एडिशन ऑफ नेशनल स्टार्टअप अवार्ड से भी यहाँ पे सम्मानित किया गया। कहाँ पर? लोकेशन रहेगी भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। और कब कब हुआ ये, कब सम्मानित किया गया? ऑन नेशनल स्टार्टअप डे। नेशनल स्टार्टअप डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो नेशनल स्टार्टअप डे ऑब्जर्व किया जाता है 16 जनवरी को, राइट। एंड याद रखेंगे ये 8वां एडिशन था नेशनल स्टार्टअप डे का, जो भी 16 जनवरी को ऑब्जर्व किया गया, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे जो ये अवार्ड्स प्रेजेंट किए गए, कहाँ पर किए गए? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। एंड इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया गया था DPIIT के द्वारा। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे अभी हमने जो ये देखा, ये जो स्टेट्स ने टॉप किया, ये कैटेगरी ए में टॉप किया, मतलब जहाँ पर पॉपुलेशन ग्रेटर देन 1 करोड़ है। अगर मैं कैटेगरी बी की बात करूँ, जहाँ पे पॉपुलेशन लेस देन 1 करोड़ रहेगी, उसकी अगर मैं बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश ने यहाँ पे टॉप किया इन कैटेगरी बी, राइट। चलिए नेक्स्ट पे अगर देखें DPIIT की अगर बात करें, सेक्रेटरी कौन रहेंगे यहाँ पर? राजेश कुमार सिंह, राइट। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहेगा। फिर इसी के अलावा अगर कुछ और वन लाइनर्स देखें, जैसे फॉर एग्जांपल बताओ, अभी रिसेंटली एक ब्लास्टिक मिसाइल M51.3 ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये फ्रांस के द्वारा रिसेंटली टेस्ट किया गया। एक ब्लास्टिक मिसाइल रहेगी, लॉन्ग रेंज ब्लास्टिक मिसाइल। वज्र प्रहार, वज्र प्रहार एक एक्सरसाइज है इंडिया एंड USA के बीच में हुई। कहाँ पर हुई? उमरोई में। उमरोई कहाँ पर है? इंडिया में, मेघालय में। नेक्स्ट आ जाता है, हु हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल टू लॉन्च ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम फॉर CPLs एंगेज्ड बाय BRO। ये CPL क्या है? कैजुअल पेड लेबर्स। जो कैजुअल पेड लेबर्स होते हैं ना, उनको यहाँ पे इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने की बात की गई बाय राजनाथ सिंह, राइट, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के द्वारा, राइट। और ये जो कैजुअल पेड लेबर्स, ये BRO के लिए काम करते हैं। अगर मान लो कोई दुर्घटना में इनकी डेथ हो जाती है तो इनकी फैमिली को यहाँ पे 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, या फिर जो भी नेक्स्ट टू किन है इन द केस ऑफ डेथ, 10 लाख रुपए यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। फिर इसी के अलावा देखें तो जैसे आपका जो डेथ हो जाती है तो उस केस में हॉस्पिटल से घर तक ले जाने के लिए जो एम्बुलेंस का खर्चा, राइट। फिर उसी के अलावा जो फ्यूनरल असिस्टेंस होती है, पहले वो 1,000 रुपये थी, उसको बढ़ा के अब कितना कर दिया गया है? 10,000 रुपये कर दिया गया है। और इसी के अलावा भी याद रखेंगे, एट द टाइम ऑफ डेथ इमीडिएट हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए 50,000 रुपये इमीडिएट यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे टू द फैमिली। ठीक है, चलिए फिर इसके अलावा अगर देखें, मित्रा शक्ति, ये मित्रा शक्ति किनके बीच में एक्सरसाइज होती है? इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में हुई। लोकेशन रहेगी पुणे, पुणे महाराष्ट्र में एक्सरसाइज हुई। ठीक है, चलिए IGLA एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, इग्ला एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल इंडिया को डिलीवर की गई किस कंट्री के द्वारा? तो रशिया ने यहाँ पे इग्ला एयरक्राफ्ट मिसाइल्स को डिलीवर किया टू इंडिया। ठीक, फिर इनलैंड फिशरीज, इनलैंड फिशरीज के लिए बेस्ट स्टेट का अवार्ड किस स्टेट को दिया गया? तो वो रहेगी यूपी को सम्मानित किया गया विद बेस्ट स्टेट फॉर इनलैंड फिशरीज। नेक्स्ट, किस इंडियन नेवल शिप ने, विच इंडियन नेवल शिप्स वर डीकमीशन्ड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? तो 3 इंडियन नेवल शिप्स को यहाँ पे डीकमीशन किया गया था, INS चीता, INS गुलदार एंड INS खुम्बीर। ये वो 3 इंडियन नेवल शिप हैं जिनको अभी रिसेंटली डीकमीशन किया गया, राइट। इनके 40 साल हो गए थे सर्विस के और इनको डेवलप किया गया था इन पोलैंड। एक पोलैंड का शिपयार्ड है गिडनिया शिपयार्ड, राइट। इनके द्वारा पोलैंड में इसको, इन 3 शिप्स को डिलीवर किया गया था, डेवलप किया गया था और इनको अभी डीकमीशन कर दिया गया आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ देयर सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपसे मैं पूछूं, जरा बताओ अभी रिसेंटली किनको महाराष्ट्र का लता मंगेशकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? सुरेश
वादकर को, राइट। सुरेश वादकर को यहाँ पे महाराष्ट्र के लता मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया, राइट। मिस यूनिवर्स 2023 के टाइटल से किनको सम्मानित किया गया? शेनिस प्लासियोस इनको सम्मानित किया गया मिस यूनिवर्स 2023 के टाइटल से, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है किनको सम्मानित किया गया ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के अवार्ड से? ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया से किनको सम्मानित किया गया? तो रियान रेनॉल्ड्स को यहां पे सम्मानित किया गया, एक्टर हैं ये, ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया से, राइट। डेडपूल का कैरेक्टर इन्होंने ही प्ले किया है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग हाउ मेनी पीपल मूव्ड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन द लास्ट 9 ईयर्स? पिछले 9 साल की अगर बात करें तो कितने लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आ गए हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राइट। इसी में ध्यान रखेंगे, अगर आपसे मैं पूछूं सबसे पहले कि ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया गया? नीति आयोग के द्वारा, राइट। 2013-14 से लेके 2022-23 तक की अगर मैं बात करूं, इन 9 साल में जो लोग पॉवर्टी से बाहर आए हैं वो कितने लोग रहेंगे? 24.8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पॉवर्टी से बाहर आए हैं इन द लास्ट 9 ईयर्स, राइट। और यहाँ पर अगर हम देखें सबसे ज़्यादा लोग जो बाहर आए हैं पॉवर्टी से फॉर यूपी से रहेंगे, 5.94 करोड़ लोग यहाँ पे यूपी में पॉवर्टी से बाहर आए हैं। नीति आयोग की बात करें तो चेयरमैन कौन रहेंगे? नरेंद्र मोदी जी, राइट। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? BVR सुब्रमण्यम। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहेगा। नेक्स्ट DEPWD एंड NHRDN इन्होंने अभी रिसेंटली MOU साइन किया दोनों ने मिलकर। DEPWD क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, एंड NHRDN क्या है? नेशनल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नेटवर्क। इन्होंने MOU साइन किया ताकि जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा सके पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को, राइट। दिव्यांगन्स को यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जाए। यहाँ पे जो HR है, राइट, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, उनको कनेक्ट करके इन लोगों को यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराने की बात की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं नीति आयोग एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इन्होंने रिसेंटली एक कंपेडियम लॉन्च किया ऑन मेन स्ट्रीमिंग मिलेट्स इन एशिया एंड अफ्रीका। अगर आपको याद हो 2023 को UN के द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स घोषित किया गया था। रीजन बीइंग कि मिलेट्स के यूज को बढ़ावा दिया जा सके। ये काफ़ी हार्डी क्रॉप है, फाइब्रस क्रॉप है, न्यूट्रिशियस है, प्रोटीन है। इवन अगर आपको याद हो तो राजनाथ सिंह ने आर्म्ड फोर्सेस में मिलेट्स के यूज़ को बढ़ावा दिया गया था ताकि वो फोर्स में जो भी खाना खाएं वो उसमें मिलेट्स हो, राइट। तो अभी यहाँ पर हम देख लें एशिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ में यूज़ ऑफ मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए ही ये कंपेडियम लॉन्च किया गया, राइट, ताकि हम मिलेट्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें। एंड इंडिया को इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी मिलेगा क्योंकि इंडिया में काफ़ी मिलेट ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं डी लैब्स एट इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जो कि हैदराबाद तेलंगाना में है। इन्होंने लॉन्च किया एक बिल्ड फॉर बिलियंस, राइट। ये एक स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम है। इन्होंने यहाँ पे RBI हब एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ टाइप करा ताकि एक स्टार्टअप एक्सेलरेटर खोला जा सके, जिससे क्या होगा, जो बिजनेसेस हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो स्मॉल स्टार्टअप्स हैं, उनको हेल्प किया जाए, उनको कैसे ग्रो करना है, राइट, उनको क्या बिजनेस सेंस होनी चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे फंडिंग लेनी है, किन से मिलना है, उनको हेल्प किया जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है ना, जैसे गिग वर्कर्स हो गए, माइग्रेंट वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, कंस्ट्रक्शन लेबर्स, इनको हेल्प किया जाएगा, राइट। इनकी जो वॉलेटाइल इनकम है उनको रेगुलर इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने की बात की जाएगी, उनका हेल्प किया जाएगा। एंड लाखों लोगों को यहाँ पे हेल्प किया जाएगा। इवन स्टार्टअप्स को यहाँ पे कैसे उनको बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज, राइट, कैसे नेटवर्किंग करनी है, नेटवर्क रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, राइट, मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी। तो ऐसे इसीलिए यहाँ पर ये डी लैब्स एट ISB इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, इन्होंने बिल्ड फॉर बिलियंस ये एक स्टार्टअप एक्सेलरेटर खोला इन कोलैबोरेशन विद RBI हब एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। RBI हब की अगर मैं बात करूं,
यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? राजेश बंसल। हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका में 2022 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट आपका होमवर्क सेक्शन। पहला, पनामा कैनाल विच हैज बीन इन न्यूज कनेक्ट्स विच टू ओशंस। दूसरा, व्हाट इज पैरामाइरोथीसियम इंडिकम दैट वाज इन द न्यूज रिसेंटली। तीसरा, रिसेंटली तेलंगाना कोलैबोरेटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू एस्टेब्लिश सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। चौथा, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली इशू किया जैपनीज येन डिनोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड्स को। एंड पांचवा, विच स्टेट वाज रैंक्ड एज द बेस्ट परफॉर्मर इन द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग फॉर 2022। तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कजन्स, रिलेटिव्स, नेबर्स एंड सबको बता दो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म पर आके डेली इंफॉर्मेशन ले सकें। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.